Hello student, today we will study A Pact with the Sun, the second chapter, The Friendly Mongoose. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. Farmer and his wife had a small son. Also you can see in the picture the baby is sleeping in the cradle. They loved him very much. We must have a pet. The farmer said to his wife one day. Farmer said that they should have a pet. Pet means कोई भी एनिमल ऐसा होना चाहिए जिसको वो अपने घर पर उसको पाले. When our son grow up, he will need a companion. Farmer said his wife that when their child will grow up, the child will need a companion. Companion means friend, dost. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. Also, farmer's wife liked the idea that they should have a pet. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose. Farmer said his wife that this one is the baby mongoose, but will soon be fully grown. जल्दी से बड़ा हो जाएगा. He will be a friend of our son. उसने कहा कि वो हमारे बच्चे का फ्रेंड बन जाएगा जल्दी ही. Both the baby and the mongoose grew. दोनों अब बढ़ रहे थे. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. Now, within 6 months, the baby mongoose become a big mongoose, and the mongoose is so beautiful. It has 2 shining eyes and bushy tail. उसकी जो tail थी वो bushy थी. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. But 6 महीने में मंगूस तो बड़ा हो गया, लेकिन बच्चा अभी भी बच्चा ही था. And the child sleeps in the cradle and sometimes sleep and sometimes cry, sometimes play. This action is an alternate. कभी रोता था, कभी खेलता था, कभी सो जाता था. One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in its little cradle. एक दिन जो है फार्मर की वाइफ को मार्केट में जाना था. सो सी फेड द बेबी, बच्चे को खाना खिलाया. एंड सी पुट्स द चाइल्ड इनटू द क्रेडल एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. रोक्ड मीन्स वहाँ पर सुलाने के लिए उसको क्रेडल में रखा. पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार. द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. And this time she warns her husband that she doesn't want to put her baby with the mongoose, and that is why she told her husband to keep an eye on the baby. वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा मंगूस के साथ अकेला रहे. and that is why कीप एन आई मतलब नज़र रखना. अपने बच्चे पर नज़र रखने के लिए अपने हस्बैंड को बोलकर जाती है. यू नीडंट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर. द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, यू नो. हियर फार्मर सेड दैट कि अपनी पत्नी को ऐसे कहता है कि मंगूस से डरने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ फ्रेंडली मंगूस. और स्वीट है, जैसे उसका बच्चा स्वीट है वैसे ये मंगूस भी स्वीट है. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फ्रेंड फील्ड नॉट फार अवे. उसका जो फार्म था वो बहुत दूर नहीं था. His field was not far away, so he wanted to do work in the field. And the child was sleeping in the cradle, so he has nothing to do. उसने सोचा कि बच्चा तो सो रहा है, उसके पास कुछ काम नहीं है, तो चलो फार्म में जाए और काम कर ले. That is why he went to his farm. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. He forgotten to return at home on time. वो भूल जाता है घर पर जल्दी से पहुँचने के लिए, because he met with some of his friends.
The farmer's wife finished her shopping and come back home with a basket full of groceries. Basket full grocery लेकर वो आती है. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her. As was customary. Customary means custom जो होती है, रीत जो होती है. जैसे ही उसने फार्मर की वाइफ को देखा वो दौड़कर सामने गया उसको विश करने के लिए. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड. ब्लड, शी क्राइड. द फेस एंड पोज ऑफ द मंगूस वर स्मेल्ड विथ ब्लड. उसने देखा कि उसके फेस पर और पो पर ब्लड था. सो शी स्क्रीम्ड, चिल्लाती है. स्क्रीम्ड मीन्स साउट, चिल्लाती है. ब्लड, यू विग्ड एनिमल, you have killed my baby. She screamed hysterically. Hysterically means पागलों की तरह चिल्लाती है. She was blind with rage. Rage means गुस्से से वो पागल हो जाती है. And with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smelled mongoose and ran inside to the child's cradle. She threw the full of basket on the mongoose. And here mongoose was killed. The baby was fast asleep. When she went inside the room, the baby was sleeping fast. But on the floor a lay cobra snake, torn and bleeding. उसने देखा कि वहाँ पर एक कोबरा था जो ब्लीडिंग हुआ था, टूटा हुआ था. In a flash she realized what had happened. अब उसको पता चल गया. इन अ फ्लेश जैसे एक चमकारा होता है दिमाग में, एक आइडिया आ जाता है सडनली कि क्या हुआ था. सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस. सी केम आउट एंड हियर सी केम आउट टू लुक द मंगूस. ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड. यू किल्ड द स्नेक. वॉट हैव आई डन. सी रिपेंटेड. अब उसको बहुत ही पछतावा होता है कि उसने क्या कर दिया. वो कहती है कि तूने तो मेरे बच्चे को बचाया है. सी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल. द मंगूस वॉज डेड एंड इट वॉज स्टिल. स्टिल मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रहा था. अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग. और जो लेडी थी वो शुभ कर रही थी. सो मतलब रोने के बाद जो हिबका भरती है वो भर रही थी, बट उससे वो मंगूस था वो अनअवेयर था. द मंगूस वॉज अनअवेयर ऑफ द सोबिंग ऑफ द लेडी. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose, and the farmer's wife's action was rash. The action was hastily. It was the action taken in hasty step. कि उतावल में उसने कदम भर तो लिया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या है. पहले उसे देखना चाहिए अंदर जाकर, फिर उसको कोई भी एक्शन लेना चाहिए था. बट उसने ब्लाइंडली रेज और एंगर में एक्शन तो ले लिया, बट उसका एक्शन रॉन्ग था. देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स, एंड सी वेंट इन टू फीड हिम. अब अंदर से जो आवाज़ आती है, शी वेंट इन टू द रूम. द बेबी वॉज क्राइंग. बच्चा रो रहा था. तो वो अंदर जाती है, अपने बच्चे को खाना खिलाती है. तो स्टूडेंट, ये चैप्टर है, उसमें से मोरल ये है कि हमको कभी बिना सोचे कभी कोई कदम उठाना नहीं चाहिए. एक प्रोवर्ब भी अच्छा है, थिंक बिफोर यू लीप. मतलब जंप लगाने से पहले सोचना चाहिए. कोई भी कार्य करने से पहले हमको सोचना चाहिए. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन 1. व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस? The farmer brought a baby mongoose into the house because he wanted his son to have a companion when he grew up, and he felt that the mongoose will be this companion. So this is the question 1's answer. Question number 2. Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? वो क्यों नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा मंगूस के साथ अकेला रहे? The farmer's wife didn't want to leave the baby alone with the mongoose because the mongoose was a full-grown animal and she was afraid that it would hurt the baby. वो उसे लगता था कि मंगूस उसके बेबी को हर्ट करेगा, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका बेबी मंगूस के साथ अकेला रहे. Question 3. What was the farmer's comment on his wife's fears? जब उसकी वाइफ
डरने लगी कि उसके बच्चे को अकेला नहीं रखेगी, तो फार्मर ने क्या कहा? द फार्मर्स कॉमेंट ऑन हिज वाइफ फियर्स वॉज दैट शी नीडंट बी अफ्रेड, कि उसको डरने की ज़रूरत नहीं है. ही सेड दैट द मंगूस वॉज अ फ्रेंडली एनिमल, इट वॉज एज स्वीट एज द बेबी एंड दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. उसने कहा कि वो भी उसके बेबी की जितना स्वीट है और फ्रेंडली मंगूस है, उसके साथ डरने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ क्वेश्चन 4. वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विथ हर बास्केट? उसके ऊपर बास्केट से स्ट्राइक क्यों करती है? स्ट्राइक मतलब हिट, उस पर फेंकती क्यों है? द आंसर इज व्हेन द फार्मर्स वाइफ केम बैक फ्रॉम द शॉपिंग, जब वो शॉपिंग से वापस आती है, शी शो द मंगूस फेस एंड पोज वर स्मेल्ड मतलब पूरा लगा हुआ था विद द ब्लड. Blind with rage, she struck the mongoose with heavy basket full of groceries. गुस्से में आकर उस पर ग्रोसरी का जो बास्केट था वो फेंक देती. उसे लगा कि मंगूस ने उसके बच्चे को मार दिया है. नाउ लास्ट वन, क्वेश्चन 5. डिड सी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन? रिपेंट मतलब पछतावा होना, हेस्टी मतलब जो उतावल में जो स्टेप लिया था वो, तो उसको उतावल में जो स्टेप लिया था उसका रिपेंट मतलब पछतावा हुआ. हाउ डज सी शो हर रिपेंटेंस? उसने अपना पछतावा कैसे दिखाया? यस, सी डिड रिपेंट हर हेस्टी एक्शन. उसको पछतावा हुआ था. हर रिपेंटेंस कैन बी सीन बाय द फैक्ट that she went running out to look if the mongoose was alive and then cried and touched an dead mongoose saying, what have I done? वो बाहर गई, वहाँ पर रोती है और कंफर्म करती है कि शायद अगर वो जिंदा हो, लेकिन वो मर गया था. फिर रोती है और अपनी जो रिपेंटेंस है वहाँ पर दिखाती है, अपना जो हेस्टी स्टेप है वहाँ पर उसको उस पर पछतावा होता है. सो स्टूडेंट, चैप्टर को रीड करना है एक बार, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको नए लगे वो लिख देने हैं, और वर्ड मीनिंग क्लास वर्क में लिखने हैं, और क्वेश्चन आंसर है वो होमवर्क बुक में लिखने हैं. थैंक यू.